Students, today we are going to start second chapter of history, that is socialism in Russia and the Russian Revolution. So first of all, we will see the content, what all we are going to study in the chapter. First is the age of social change. Like on the basis of ideology, Russian society in the 18th century was divided into three groups. One was liberals, then radicals and conservatives. So one by one we will see the different ideologies of these three group of people, like what were they thinking, what was their ideology about the polity and society of Russia. Then we will see the industries and social change, like how industries were established in Russia, what was the condition of the owners and of these industries, and then what was the condition of the factory workers and laborers, how they were treated by their owners. Then we will see the socialism in Europe, like who were the important famous personalities throughout the world from which the people of Russia were inspired and influenced to brought socialism in Russia also. Then we will see support for socialism, like how they gathered Russian people or the supporters of socialism in Russia. They gathered support from all over the world, like SDP, Social Democratic Party, Labour Party in Britain, Socialist Party in France. So all these topics which we are going to study. Then we will start with the whatever I taught you in the previous slide was related to the 18th century Russia, condition of Russia in that century. Then we will see how these conditions led to the Russian Revolution in a broad sense, like what was the condition of economy and society in Russia. Then socialism in Russia, how it originated in Russia, like Russian Socialist Democratic Labour Party, division of Bolsheviks and Mensheviks, मीन्स जो भी सोशलिज्म को के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ हुई रशिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन हाउ 1905 revolution took place, what were all the important events like Bloody Sunday, then First World War and Russian Revolution, what happened during Russian Empire, what is the relationship between First World War and the Russian Empire or the Russian Revolution. So we will see that also. Then we will see February Revolution in Petrograd, that after October Revolution, why of 1905, why February Revolution took place. Then what was October Revolution. Then we will see the Civil War, then making a socialist society, that how Russia became a socialist society. Then what was the role of Stalin in all this, and collective farming. What was collective farming, because it was new for the world. And then what was the global influence of Russian Revolution on the different people and governments of different countries, especially the democratic countries. So now we will start our chapter. Now in this slide you can see what is socialism. आपको बताया गया कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है. सोशलिज्म मीन्स कॉमन ओनरशिप. इट इज़ गिवन देयर कॉमन ओनरशिप. नाउ कॉमन मीन्स सबका अधिकार जब होता है उसको हम कहते हैं कॉमन ओनरशिप. जब किसी भी रिसोर्स पर किसी भी संसाधन पर हर व्यक्ति का, वहाँ पे रहने वाले समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार होता है. उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसमें डिसीजन लेने का अधिकार सभी का होता है, तो उसे हम कॉमन ओनरशिप कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जो है हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ देती है जिसपे सबका बराबरी का अधिकार है. कॉमन ओनरशिप, लाइक पार्क हो गया, आपके पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, आपके पब्लिक से जो भी रिलेटेड है उस पर सबका अधिकार होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का. तो इसे हम कॉमन ओनरशिप कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ कॉमन ओनरशिप? Everybody having right to participate in decision making on how global resources will be used. तो कॉमन ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब हर व्यक्ति का, एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री और इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग दैट हाउ द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन दैट कंट्री और सोसाइटी विल बी यूटिलाइज्ड. एंड दिस इज सिस्टम इज़ नोन एज कॉमन ओनरशिप. जब एक देश में या एक समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का वहाँ के संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उसमें डिसीजन लेने का अधिकार होता है, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं कॉमन ओनरशिप. सो बेसिकली इन अ वेरी सिंपल टर्म्स इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. मतलब समाज में जो भी संसाधन मौजूद हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एनीथिंग, water, anything, it should be equally distributed among all the people.
irrespective of caste, color, rich, whether a person is rich or poor, on any gender, there should be no discrimination. किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए. कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत पैसा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है. तो इस तरह का जो है गैप नहीं होना चाहिए. इसी को हम कहते हैं सोशलिज्म, when there is equal distribution of wealth in between the people. Then we will see the event occurred in Russia in October 1917, shook the world. It was the biggest upheavals of modern times. So whatever happened in 1917 October in Russia, it was a very major setback for throughout the world, especially for the democratic countries, because Russia was one of the largest countries at that time. And when socialism socialist form of government was established in Russia, so it was a very setback for the democratic countries. उन्हें ये लगा कि डेमोक्रेसी की जगह सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे रशिया में इस्टेब्लिश हो गई है. तो ये एक बहुत ही धक्के वाली बात थी फॉर द नॉन सोशलिस्ट कंट्रीज़. नाउ रशियंस इंस्पायर्ड बाय द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी लेड बाय लेनिन. जो रशिया में जो भी रेवोल्यूशन हुआ था उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है वहाँ के लीडर को, जिसका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन. ही वॉज द मेजर जिसे हमारे यहाँ पे हम महात्मा गांधी या फिर बहुत ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. सिमिलरली लेनिन वाज द वन पर्सन हु वाज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. वो रशिया में सोशलिज्म चाहता था. ही वाज टोटली अगेंस्ट कैपिटलिज्म. वो पूंजीवाद के जो है सख्त खिलाफ था, क्योंकि पूंजीवाद मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये सिस्टम फॉलो था. तो ही वांटेड अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी why these people were favoring socialism, you have to understand this. Socialism is a type of government where all the people are equally treated. सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है, सबके साथ एक ऑल द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है. ना कोई बहुत अमीर होता है, ना बहुत उसमें गरीब होता है, क्योंकि वेल्थ सबको इक्वली मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, जैसे कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है. सो इसीलिए सोशलिज्म में किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है रखने का अधिकार तो है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं. एक लिमिट के आगे आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हो. ऐसा नहीं है कि एक फैमिली को 5 हेक्टेयर लैंड की ज़रूरत है और आपने 50 हेक्टेयर लैंड अपने कब्जे में कर रखा है. तो इस तरह का जो है जो सिस्टम होता है वो सोशलिज्म के अगेंस्ट में होता है. और जो सोशलिस्ट के फॉलोवर्स थे उन्हें लगता था कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो रिच लोग होते हैं, ये इसी की वजह से समाज में पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं की वजह से हो रही है. अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर दें तो हर लोगों को ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली, ऑल पीपल विल गेट इक्वल रिसोर्सेज, सो देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल. So Lenin was the first person or the most important leader who took this campaign forward in Russia, and with his help, socialist form of government was established in Russia in October 1917. Now Lenin was very much influenced by a very famous personality, that is Karl Marx. Karl Marx was a very great economist of Germany, and he was supporter of socialism and communism. He was totally against capitalism. वो कैपिटलिज्म के खिलाफ था जो कि अमेरिका में फॉलो होता था. उनका मानना था कि कैपिटलिज्म जो है वो वर्कर्स का जो है बहुत बड़ा एक एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे, और इसीलिए जो है किसी भी देश में सोशलिज्म होना चाहिए जहाँ पे हर जो भी रिसोर्सेज हैं दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सुनाओ अब हम देखते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जो सोशलिस्ट थे दे वर अगेंस्ट द कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द कैपिटलिस्ट फॉर्म कैपिटलिज्म. बेसिकली दे वर अगेंस्ट कैपिटलिज्म. Now ideology, according to ideology, 3 groups were created in Russian society in the 18th century. हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जहाँ एक विचारधारा क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को लेकर हमारा एक मत बन जाती है, हमारी एक सोच क्रिएट हो जाती है, थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं आइडियोलॉजी. किसी भी चीज़ को लेके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में जैसे नागरिकता कानून है या फिर और किस तरह की सरकार होनी चाहिए, इस पे लेके अगर कुछ लोगों का विचारधारा कुछ और है. कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कम्युनिज्म रहे. तो अगर लोगों की जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है, तो उन लोगों को फॉलो करते हुए जब लोगों का ग्रुप बन जाता है तो उनको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स. तो
इसी तरह से रशियन गवर्नमेंट को लेकर कि किस तरह की जो है सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए रशिया में, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस तरह को इस चीज़ को लेकर रशिया में एक डिफरेंट विचारधाराएं बन गई थी, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ क्रिएट हो गई थी। जैसे कि अब आइडियोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन वायलेंस। उनका मानना था कि हम कोई भी काम वायलेंस से मारपीट से अचीव नहीं कर सकते। सो ही वॉज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस, कि बिल्कुल भी अहिंसा होनी चाहिए। तो ये उनका सोच था। इसी तरह से समाज में जो है एक सोच क्रिएट हो जाती है और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसका ग्रुप बना देते हैं एक। तो रशिया में जो है आपके 3 ग्रुप बने, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, एंड ऑल दीज ग्रुप्स हैड देयर डिफरेंट थिंकिंग ऑन द टू ब्रिंग अबाउट changes in Russian government, that what type of government should be there in Russia, or what should be the nature of the government, what type of system should be followed. So on this basis, liberals, they believed in change. They wanted change in Russia, total change वो चाहते थे. They wanted a nation in which all religions should be treated equally. वो चाहते थे कि जितने भी हमारे रशिया में धर्म है उनको सबको टॉलरेट किया जाए, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए. Then they wanted to safeguard द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. वो जो भी इंडिविजुअल्स थे उनके राइट्स को बनाना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हो कि 18th सेंचुरी में किंग का रूल था, रशिया में ज़ार का रूल था, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, क्योंकि जो किंग था वो सबको बराबरी का अधिकार नहीं देता था, इंडिविजुअल्स के राइट नहीं थे. जैसा हमारे पास अभी हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे संविधान में हमें दिए हुए हैं. तो इस तरह का राइट जो है रशिया में उस समय नहीं था. 18th सेंचुरी की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत पुराना टाइम है. तो वो चाहते थे कि किंग का रूल हटे और वहाँ पे पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो. दे वांटेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. किंग का रूल वो ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि किंग का रूल बहुत ही इट वॉज वेरी अनईक्वल, वेरी हार्श, एंड इट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल. रशिया वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. देयर वॉज पॉवर्टी ऑल ओवर, अनएम्प्लॉयमेंट, देन पीपल वर हंगर प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी. देन दे वांटेड, देन लिबरल्स वांटेड जुडिशरी. दे वांटेड न्यायपालिका की एक प्रॉपर कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो है रशिया की सोसाइटी रन होनी चाहिए. बेसिकली लिबरल मीन्स फ्रीडम, ओपन माइंडेड, जिनकी सोच बिल्कुल लिबरल होती है. लिबरल मीन्स जो बहुत कट्टर नहीं होते हैं, जो अपनी जो आसानी से बदल जाते हैं समय के साथ साथ, जो चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम लिबरल्स कहते हैं. सो लिबरल्स ऑल्सो वांटेड दैट मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव द राइट टू गिव वोट. कि जो जब चुनाव हो रशिया में, तो जो भी सिर्फ पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए. सो प्रॉब्लम विद लिबरल्स वर दैट दे वर स्टिल अगेंस्ट द वेमेन. उन्होंने महिलाओं के कानून के बारे में कोई बात नहीं की, हक के लिए कोई बात नहीं की. Then we will come to radicals. Who were the radicals? Radicals, they wanted majoritarian government. Radicals were those people who wanted quick change in Russia, and they wanted the government of those people, that religion who were in majority in Russia. वो धर्म जिसके मैक्सिमम लोग रशिया में रहते थे वो उनकी सरकार चाहते थे. Then they also supported women suffragette. What is women suffragette? सी आई एम टॉकिंग अबाउट रेडिकल्स. तो रेडिकल्स के जो भी पॉइंट है वन बाय वन आप देखते रहना. आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट ऑफ रेडिकल्स. सपोर्टेड वुमेन सफ्रागेट. सफ्रागेट मीन्स कि जो रेडिकल्स थे दे वांटेड वुमेन आल्सो टू वोट. तो वुमेन को वोटिंग का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, जिस मूवमेंट को सफ्रागेट मूवमेंट कहा गया, ताकि जो महिलाएं हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार, वोट करने का अधिकार मिल सके. नाउ रेडिकल्स दे वर टोटली अगेंस्ट द लैंड ओनर्स, बिग लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, या फिर वो ज़मींदार जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, उनके ये सख्त खिलाफ थे. उनका मानना था कि इनसे सारी चीज़ें छीन लेनी चाहिए. देन दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बट ये दे वर अगेंस्ट द एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये चाहते थे कि जो भी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबके पास अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन हद से ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर हद से ज़्यादा है तो वो सरकार को उनसे छीन लेनी चाहिए. देन थर्ड वर द कंजर्वेटिव पीपल. कंजर्वेटिव आर दोज पीपल हु आर नॉट रेडी फॉर क्विक चेंज.
ऑलराइट, दे डिड नॉट एक्सेप्ट, कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व करके रखना, कट्टर होना, मतलब बहुत जल्दी बदलाव को एक्सेप्ट ना करना. सो दीज वर द पीपल हु वर अगेंस्ट radicals and liberals in the 18th century. When liberals, when the followers of liberals and radicals, they were talking about to bring change in Russia, at that time conservatives were totally against them. They does not wanted these change, so they were against liberals and radicals. कंजर्वेटिव्स का कहना था कि बदलाव जो होता है वो बहुत सही नहीं होता, और अगर बदलाव करना भी है तो बहुत धीरे धीरे करना है. और ये भी बदलाव उनके अंदर 19th सेंचुरी में आया. कंजर्वेटिव थोड़े से झुके 19th सेंचुरी में, और उन्होंने कहा कि अगर कोई बदलाव लाना भी है तो वो जो है बहुत रैपिड नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्लो बदलाव होना चाहिए. सो दीज वर द थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी into which 18th century Russian society was divided. Now in this next slide you can see industrial society and social change. Now you know that in 17th century industrialization has occurred in Great Britain. So due to that industrialization, many industries were also formed or developed in Russia also. जैसे से इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई रशिया में, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे, वो फैक्ट्रीज़ में पहुंचे काम करने के लिए एज ए वर्कर. जब वो वहाँ पहुँच, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी रशिया में, तो जब ये लोग पहुँचे वहाँ काम करने के लिए तो उनसे बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था और बहुत ही कम सैलरी, वेजेस वर वेरी लो एंड द वर्किंग टाइम वॉज वेरी लेंदी. लाइक दे वर यूज टू वर्क फॉर 15 to 16 hours and for that they used to get very minimal salary, minimal wages. Then they were also facing housing and sanitation problem. There was no housing facilities. फैक्ट्री ओनर्स जो थे, वहाँ के जो मालिक थे, वो प्रॉपर उनको रहने के घर नहीं देते थे, क्योंकि बहुत लोग माइग्रेट करके दूर से भी आते थे काम करने के लिए. देन सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब शौचालय की प्रॉब्लम थी. सो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी रशिया में वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट थी नहीं उस समय, किंग का रूल था. मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ वर इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट ओनर्स. तो ये जो प्राइवेट ओनर्स थे, आपको पता ही है कि प्राइवेट ओनर्स क्या चाहते हैं, ओनली प्रॉफिट. एंड फॉर प्रॉफिट पर्पस दे ऑलवेज एक्सप्लॉइट द लेबर्स. वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, उनकी सैलरी कट करते हैं और अपना बचत करते हैं. सो जो लिबरल्स थे एंड रेडिकल्स थे, दे वर स्ट्रांगली अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ओनर्स, दीज प्रिविलेज ग्रुप्स. वो प्रिविलेज ग्रुप्स थे जैसे कि चर्च में जो फादर होते हैं, प्रीस्ट होता है, या फिर जो किंग होता है, किंग के साथ करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, वर्क करने वाले जो नोबल्स होते हैं, जो मतलब लैंड ओनर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, दे वर टोटली अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि बाय बर्थ इनको प्रिविलेज मिला रहता है, बाय बर्थ ये सारी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं. और उनका मानना था, जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, उनका मानना था कि क्योंकि जो लिबरल्स रेडिकल्स वो लोग थे जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते थे या कहीं किसी ना किसी के अंडर में काम करते थे, नौकरी करते थे, वही लिबरल्स और रेडिकल्स जो है ग्रुप में शामिल थे. तो उन्हें लगता था कि हम तो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और ये जो लोग हैं, ज़मींदार हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये बिना कुछ किए पैसे कमाते हैं, क्योंकि सारा काम तो लेबर्स कर रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा जो है फैक्ट्री ओनर्स को हो रहा है, या जो आपके बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो बैठे बैठा इतने पैसे कमा रहे हैं. तो ये जो लोग चाहते थे कि सारे लोग मिलकर काम करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, हर आदमी वर्क करे और उसके बदले उसी हिसाब से उसको पैसे मिले. नाउ in France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and overthrew existing monarch. तो जो रेडिकल्स और लिबरल्स के फॉलोअर्स थे बहुत जगह, वो बिकॉज दे वर हाईली डिससेटिस्फाइड, बहुत परेशान थे वो कंडीशंस थे, तो उन्होंने क्या किया, जो है रेवोल्यूशनरीज बन गए, वो क्रांतिकारी. जैसे आपने सुना था ना कि मतलब जगह जगह उन्होंने जो है किंग के खिलाफ या जो भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काफ़ी उन्होंने मतलब अपोज़ करना स्टार्ट कर दिया. और उसमें से एक बहुत फेमस थे एक क्रांतिकारी, जैसे हमारे इंडिया में भगत सिंह थे ना, वैसे ही आपके जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं ना, वो बहुत ही अलग, वो मतलब पीसफुल नहीं, नॉन वायलेंस टेक्निक भी यूज़ करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए. उसी में से एक थे गुसेपी मैज़ीनी, जो कि आपके इटालियन जो है वो इटालियन थे और रेवोल्यूशनरी थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इटली में किंग रूल को हटा के वहाँ से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए. तो उनसे काफ़ी लोग जो थे आपके इन्फ्लुएंस थे.
नाउ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में जो है सोशलिज्म किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो वर्कर्स थे वो बहुत परेशान थे, बिकॉज दे वर हाईली एक्सप्लॉइटेड बाय देयर ओनर्स। जो उनके मालिक थे उन्हें काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दे वर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स बट दे वर गेटिंग वेरी लिटिल वेजेस एंड देन दे वर फेसिंग सैनिटेशन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम। तो इनसे वो बहुत परेशान थे। तो उन्हें लगता था कि जो जितने अमीर लोग हैं इनका काम तो हम ही कर रहे हैं और ये सारे के सारे पैसे इनके हाथ में। तो उनके अंदर एक दिमाग में एक सोच डेवलप हो गई कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी है इसको हम हटा लें, इनसे छीन लिया जाए, तो फिर ये जो भी समाज में प्रॉब्लम्स हैं, भेदभाव है, जो भी अमीरी गरीबी है, ये सब हट जाएगी। ठीक है, तो हमारे देश में ना तो कोई बहुत अमीर रह जाएगा ना बहुत गरीब रह जाएगा, सबके पास इक्वल वेल्थ आ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और उन्हें लगता था कि जो भी इंडिविजुअल ओनर्स हैं वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह से जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सब खिलाफ हो गए और वो चाहते थे कि सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब रॉबर्ट ओवेन या लुइस ब्लैंक, देन कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, ये सब के सब जो थे वो अपने अपने देशों में ये सोशलिज्म जो है उसके लिए काफ़ी काम कर रहे थे और इससे रशिया के लोग भी काफ़ी इंस्पायर हुए, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए और इन लोग के सपोर्ट से, इन लोग के इन्फ्लुएंस से रशिया में भी सोशलिज्म के लिए काफ़ी जो है एक गेट खोल दिया और यूरोप में जो है जगह जगह, इटली हो चाहे आपका फ्रांस हो, हर जगह सोशलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ उठने लग गई, लोगों ने काफ़ी कैंपेनिंग की। नाउ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के लिए काफ़ी सपोर्ट आया। जो है जो भी सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे ऐसे लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी मीटिंग होती थी। ठीक है, जो सोशलिज्म के फॉलोअर्स थे। अब 1864 लंदन में फर्स्ट इंटरनेशनल नाम से मीटिंग हुई जिसमें जितने भी सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने बात की, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें से कुछ लोग जो थे वो कार्ल मार्क्स जो थे उनके खिलाफ थे और कुछ लोग कार्ल मार्क्स को मानते थे। तो इनमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर सेकेंड इंटरनेशनल जो है नाम की मीटिंग हुई 1889 में पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। यहाँ पर भी सोशलिज्म के फॉलोअर्स जो हैं आपस में आके मिले और उन्होंने जो है 1 मई को एज ए इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करने के लिए कहा और उनका नारा था कि हमें बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए। दे वांटेड रिड्यूस इन द वर्किंग आवर्स फॉर लेबर्स एंड वर्कर्स एंड दे डिमांडेड राइट टू वोट ऑल्सो। देन थर्ड इंटरनेशनल मीटिंग टुक प्लेस इन मॉस्को इन 1999 वेयर अ कमिंटर्न वॉज फॉर्म्ड, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वहाँ पे फॉर्म हुआ एंड दे एडवोकेटेड वर्ल्ड कम्युनिज्म। सो चिल्ड्रन, जो भी मैंने आपको आज बताया है उतना जो है आप बहुत अच्छे से इस पूरी वीडियो को पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है अपनी बुक में भी इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। देन टुमारो वी विल स्टार्ट विद द रशियन एम्पायर 1914। सो टुमारो वी विल सी दैट अभी तक जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा वो था कि रशिया में किस तरह से सोसाइटी पूरी डिवाइडेड थी, डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों की सोच क्या थी। देन किस तरह से रशिया में सोशलिज्म जो है वो एंटर हुआ, लोगों के दिमाग में जो है सोशलिज्म किस तरह से उसने अपने डीप रूट्स बना लिए और लोग किस तरह से चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे देखेंगे किस तरह से अब जो किंग का रूल था रशिया में वो ख़त्म होगा, फिर किस तरह से जो है वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी और डिफरेंट जो रेवोल्यूशंस रशिया में होंगे उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।